शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकरम प्रिंसिपल इदारा हाजा, इज़्ज़त माब असातिज़ा साहिबान, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। क्योंकि आज यहाँ पर जो हम ये प्रेयर असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 26 नवंबर जो पूरे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल डे को मनाने की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, क्यों ऑल ओवर इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाने का मकसद क्या है, इन बातों पर आने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप तक पहुंचाना चाहूंगा। क्योंकि आप यहाँ पर सभी बाशऊर बच्चे हो, आप लोग अपने क्लासों में बखूबी अपने सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में चल रहा था वो 15 अगस्त 1947 को एंड होता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, the Indian citizens were exploited, the natural resources of Indian territory were drained out from Indian territory to the European world. Indians were not assigned the high portfolios. The Indians saw all the things in their own territory that they are alien to us, they are strange to us. But due to the signature of Indian Independence Act by Lord Mountbatten on 15th August 1947, जो इंडियन सिटीजन्स थे एज वेल एज जो इंडियन लीडर्स थे उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको बाइख्तियार बनाया जाता है कि अब आप अपनी कंट्री को खुद चलाएंगे, अब आप आजाद हो, अब आप सॉवरेन हो। अगर आप चाहोगे तो आप अपनी इस कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना सकते हो, हम आपको फुल अथॉरिटी देते हैं। तो इसलिए जो इंडियन लीडर्स थे उस टाइम, जो बाशऊर थे, जो फार विजनरीज पर्सनालिटीज इंडिया में थी, मैं किन किन का नाम यहां पर लूंगा, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे कोई और मुमताज एलीट लीडर था इंडियन टेरिटरी का, उन्होंने अपनी जगह यह मशवरा किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इट वाज दैट असेंबली ऑफ पीपल who were elected by the Indian citizens and were given sole rights to draft a constitution for a diverse country like India. This constituent assembly, it was strengthened. In this constituent assembly, there were 295 members from multi-ethnic groups of Indian territory. And among these 295 members, Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as the father of Indian Constitution, he was the chairman of drafting committee within this Constituent Assembly. They framed the Constitution for the diverse country like India, and they took near about 3 years to complete it. On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India adopted and enacted the Constitution
for a diverse country, that is India, and it was enforced on 26th of November. Sorry, it was enforced on 26th of January 1950, and this day is marked as the Republic Day of India. उस वुकनस तो 7 जनवरी मनावा यूम जमहूरिया क्यों मनाते हैं बेटा? You all know that Indian Constitution is the lengthiest constitution in the world. Lengthiest. At the date of its commencement, it contains 150,000 words, 395 articles, 12 schedules, and 22 parts. It is known as the lengthiest constitution of the world. This Indian Constitution provides us 6 main fundamental rights to every citizen of India without any discrimination on the grounds of caste, creed, language, religion, and territory. All the citizens of India are fully guaranteed by the Constitution of India that you can enjoy these fundamental rights without any discrimination. But at the same time, we are abided by this Constitution. We have to follow the fundamental duties that are also entitled under our Constitution. Our Constitution also is entitled by the DSPs, that is Directive Principles of State Policy. मैं कश्मीरी में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इम मेन फंडामेंटल राइट्स दिखमें। I will mention here that is right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and at last it is right against exploitation. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसने खुद अपनी जबान से कहा है कि हिंदुस्तान के कानून में जो आर्टिकल 32 के अंडर एक कानून आता है, एक आर्टिकल आता है जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, उसने इसको दूसरा नाम दिया है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ही ऑल्सो gives it the third name, that is heart and soul of the Indian Constitution. क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर अमुक आस रूह आस वुचुन, अगर अमुक दिल आस वुचुन, ये किस पर मुनस्सर है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि जो हमारे रूलर्स हैं इस टाइम, चाहे सेंट्रल लेवल पर होते हैं या स्टेट लेवल पर होते हैं, दे आर फ्री? नो, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तुम छन फ्री, बल्कि दे आर ऑल्सो अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वी कॉल रूल ऑफ लॉ। अच्छा, आर्टिकल जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, according to that very much article, every citizen of India and every leader that is in power, they are abided by the Constitution of India. They have to rule the country according to this Constitution. अगर तुमो अमिक सर्कल्स पार कर, अगर तुमो अमिक हुदूद पार कर, they are what I can say, तमन छ इवान इन कॉन्स्टिट्यूशन के एन मुताबिक पुनिशमेंट प्रोवाइड करने। सिकेज आयस न प्राइम मिनिस्टर। तवे छ इस वनान कि युस कॉन्स्टिट्यूशन आसान छ, ये छ एक कंट्री खतर आसा जिंदा जावेद, ये छ स्पिरिट आसा एक कंट्री खतर लास्ट कप कर। क्योंकि पूरी दुनिया में आज प्रत अख कंट्री पन्नस मुल्कस खतर कॉन्स्टिट्यूशन थावान, मगर अस गस पाई आसी this constitution, this is the legacy of the French Revolution. जो फ्रांस में इनकलाब आया था 14th of July 1789 को, the first ever revolution in the world. ये छ इवान वन, this French Revolution is the enlightening candle for rest of the world. ये पे फ्रांस में इनकलाब आ, तत पे पूरी दुनिया के लोग
एंजॉय करान यथ मज राइट टू वोट यवान राइट टू लाइफ यवान राइट टू फ्रीडम यवान दैट इज वाई अस वनान यह पूरा दुनिया युस आज पन्ने कंट्री खतर लाइक करान कॉन्स्टिट्यूशन गछ आसन इट इज कॉल्ड द लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।